there. Okay, so good morning everyone. In the last class, we did talk about the formulas related to the set theory. So these were the few formulas we already have discussed. Quickly check them out. The most important and commonly used formula would be the first one. N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B. And the same situation can easily be visualized using the following diagram. Now we are going to consider certain word problems based on the concept of union and intersection of two sets. Generally, there will be two different methods to solve such type of questions. First one, a formula approach. Second one, using the Venn diagrams. And a common sense will be used in that case. I would generally recommend and prefer to go for the Venn diagram approach. But initially, I'll be taking the question using both the methods so that it will be your choice how you can proceed. If you are given with two sets, say A and B, then generally the formula is okay. For example, likewise, N of A is given, N of B is given, number of elements in set A and set B, and N of A union B is given. We need to find N of A intersection B. Therein, we need to recall this simple formula. In our list, that was first formula. N of A union B का formula रहा है N of A plus N of B minus N of A intersection B. तो बस इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. आप चेक कर सकते हैं दीज आर द गिवन वैल्यूज टू मी और ये मुझे इवैल्यूएट करना था. You will rearrange N of A intersection B और ये आ गया 27 plus 35 minus 50. You will get your required answer. Let me now consider the same question using Venn diagram. Though two elements are there, only simple formula is okay. But exactly, let's check it out what actually happened in this case. Venn diagram के through देखते हैं. So there are two sets A and B. आपको given है N of A 27. मैं यहाँ लिख लेता हूँ छोटा सा 27 और ये है 35 और दोनों का यूनियन मिलाकर 50 है. तो उसमें ये बीच वाला पोर्शन कॉमन भी आ रहा है. राइट जो हमें निकालनी है वैल्यू N of A intersection B. So this represent N of A intersection B. So what I will do, जो वैल्यू ये निकालनी थी हम इसे बीच में X एज्यूम कर लेते हैं. बस अब आप ध्यान से सोचिए क्या होगा. कंप्लीट जो मेरा सेट A है ये मेरा पूरा A है और ये टोटल कितना गिवन है 27. तो अगर इसमें से x तो जा चुका है तो रिमेनिंग मेरे पास कितना आ जाएगा 27 माइनस x आ जाएगा यहाँ पर. सिमिलरली वन कैन इजीली ऑब्जर्व ये एंट्री कितनी आ जाएगी 35 माइनस x. सो दैट इन तीनों का सम एक्चुअली यूनियन दे रहा है और वो हमें बताया गया था 50 के इक्वल. पुट दैट इक्वल टू 50. x से एक x कैंसल हो जाएगा और फिर से आप चेक करिए x आएगा ये वैल्यू विच इज सेम एज व्हाट वी गॉट यूजिंग द डायरेक्ट फॉर्मूला. Sir? Yes. So in the exam, if we are given the same question, the same type of question, what method should we choose? I already told it's your choice. Purely your option, your choice. Whichever method you find yourself comfortable,
you can go about that. We will consider both. Check out a very similar simple question here. In a school, there are 20 teachers who teach maths or physics. तो नेमिंग में ये कर लेता हूँ मैथ्स के लिए, और का मतलब यूनियन होता है, ये गिवन है 20. ऑफ दीज 12 टीच मैथ्स, 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स. तो मैथ्स एंड फिजिक्स वो एक ही बात है, ये 4 हो गया. आपसे पूछा क्या है, टू फाइंड हाउ मेनी टीच फिजिक्स, ये मुझे निकालना है. तो अगेन यू हैव अ सिंपल फॉर्मूला हियर, एन ऑफ, यहां जब दो सेट्स हैं और एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, देन वेन डायग्राम इज नॉट एक्चुअली जनरली रिक्वायर्ड, क्योंकि इस फॉर्मूला से आप कहीं जल्दी सॉल्व कर देंगे. ये आ गया 12 प्लस एन ऑफ पी हमें निकालना ही था, और ये 4 गिवन है, तो एन ऑफ पी आ गया आपका 24 और -12, योर रिक्वायर्ड आंसर. टू गेट द बेटर क्लैरिटी, होमवर्क में आप अपने आप इसे सोचिए, हाउ यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन यूजिंग वेन डायग्राम. टाइम ऑलमोस्ट इक्वल लगेगा, ये विथ प्रैक्टिस यू मस्ट रियलाइज दिस. Check this out. In a class of 35 students, देखो टोटल नंबर ऑफ, चलो ये मैं बाद में वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ. वैसे एन ऑफ यू 35 है, टोटल क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बताए हैं. 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, सी नोटेशन क्रिकेट की हो गई, बट इसे डिफाइन जरूर कर देना. 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल है एफ कह दिया, और ये 16 है. अब जो स्टेटमेंट कही है वो क्या है, ई स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स. मतलब क्लास ऑफ 35 में कोई ना कोई तो गेम बिल्कुल खेलते ही हैं. रियल लाइफ में क्या हो सकता है, क्लास है उसमें कुछ स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल, कुछ दोनों गेम्स, और कुछ जो बिल्कुल नहीं खेलते हैं. तो वो वाला केस यहाँ रूल्ड आउट कर दिया है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि क्लास में every student is involved in playing at least one of the game, और वो भी क्रिकेट या फुटबॉल में से. अब पूछा क्या है, हाउ many like to play both cricket and football, एंड हमेशा इंटरसेक्शन पे ले आएगा. ठीक है. सो अगेन अब आप चेक करिए क्या हो जाएगा हमारे पास. ये जो चीज है, क्यों हमारे पास एन ऑफ यू जो मैंने लिखा था, ये एक्चुअल में एग्जैक्टली इसी के इक्वल आपको गिवन है कि जो मेरा सैंपल है 35 स्टूडेंट्स का, और वो मिलाकर है जो क्रिकेट या फुटबॉल प्ले कर रहे हैं. So I hope this first line is clear. Though I will call this as n of u, but actually यह n of c union f हो चुका है. अप्लाई दी फॉर्मूला, बस इसके बाद तो फिर कुछ ऐसा है ही नहीं इस क्वेश्चन में. दिस इज अ डायरेक्ट फार्मूला. सो 2 वाले केसेस तो हम बहुत जल्दी लॉजिकली कर सकते हैं. सो 35 एंड दिस इज 24, 16 माइनस दिस, एंड देन एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा 24 plus 16 minus 35, your required answer. Any doubt to anyone? Now this is a little bit logical. I'm waiting. सोचिए थोड़ा ध्यान से पहले.
In a survey of 400 students in a school, 100 were taking apple juice, 150 taking orange juice, 75 taking both apple and orange juice. How many were not taking neither of the apple or the orange juice? तो आप चेक करिए. तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. यस. n तो 400 हमें यूनिवर्सल दे रखा होगा. बिल्कुल. तो आप चेक करिए एप्पल जूस वाले कितने गिवन हैं? 100. n ऑफ ऑरेंज को मैंने o कह दिया, दिस इज 150. और 75 जो है बोथ. बोथ का मतलब इंटरसेक्शन आपको कहा गया है, एंड दिस इज 75. अब बहुत ध्यान से सोचिए आपको क्या वैल्यू निकालनी है. नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज. और जो अब चीज बता रहा हूं, दिस विल बी प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इवन इन क्लास 12 जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि इससे इंटरप्रेट हम क्या कर रहे हैं. नीदर एप्पल जूस नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट, नॉर ऑरेंज जूस, एंड ऑरेंज जूस भी नहीं ले रहे हैं. तो ये वैल्यू एक्चुअली हमें निकालनी है. आपको एक फॉर्मूला याद दिलवा रहा हूं. n ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा. पहले इससे पहले ये सोचो, डी मॉर्गन्स लॉ से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल होता है यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ. ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट. तो व्हाट डज दैट मीन इफ आई अप्लाई दिस सेम नोटेशन और इसे यूज करें, तो ये चीज क्या बनने वाली है अगर आप सेम आइडिया को समझे. ये इसके इक्वल दिया है, आरएचएस के इक्वल है. ये n ऑफ ए ओ का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. ये चेक दिस आउट. ये मैंने एक्सप्रेशन यहां से यहां लाया हूं, RHS टू LHS ये लिखा गया. और ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से आप ये निकाल दो, एंड व्हाट इज दिस सेकेंड टर्म ये जो लिखी है n ऑफ ए यूनियन o क्या होता है. डायरेक्ट फार्मूला n ऑफ ए प्लस n ऑफ o माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन o. Substitute the values given to me. All the values अब आप चेक कर सकते हैं, they are listed above. I am just substituting them and simplify. So 400 minus 250, ये 175 आ गया, and ये माइनस किया 225, your required answer. So is it necessary to use De Morgan's law? Otherwise, Venn diagram? Or do you have another approach using formula? इसके अलावा मुझे फॉर्मूला अप्रोच के अलावा फिर डी मॉर्गन्स लॉ मेरे माइंड में है. क्या मतलब, मैं वो भी दिखा देता हूं. और अगर आप डी मॉर्गन्स से करना चाहें यूजिंग वेन डायग्राम्स, सो दैट इज जनरली आई रिकमेंड कि वेन डायग्राम से देखो कैसे होगा ये सिचुएशन. थोड़ा सा इजी शायद लग सकता है. 3 सेट्स में तो डेफिनेटली मैं उसी पे प्रेफर करने वाला हूं. ये 400 थे और एप्पल जूस के 100 हैं, ऑरेंज जूस 150, 75 जो हैं दे वर लिस्टेड टेकिंग बोथ. तो ये सेंट्रल वैल्यू 75 आ गई. अब लॉजिकली सोचिए, ए में टोटल 100 थे तो ये वैल्यू 25 आ जाएगी, दिस वैल्यू. और यहां कितना आएगा, ये 150
में से ये वाले 75 निकल गए जो सेंटर वाले, ये सेंटर में 75 था ना, तो 150 है आपका टोटल ओ। टोटल ओ मेरे पास ऑरेंज वाले 150 है, 150 में से ये 75 निकाल दो, तो बचा हुआ नंबर यहां फिर से कितना आ गया, 75। इसका मतलब क्या हो गया कि 20, ये जो इन तीनों वैल्यूज का सम आएगा 25 प्लस ये वाला 75 प्लस 75, ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो ले रहे हैं, ईदर एप्पल जूस और ऑरेंज जूस। व्हाट डज दैट मीन? टोटल लोगों में से अगर मैं इन्हें हटा दूं तो आई विल गेट दोज पीपल हु आर टेकिंग नीदर। उस केस में रिक्वायर्ड आंसर वुड बी देन जितने टोटल लोग थे माइनस जो कुछ ना कुछ तो ले रहे हैं, और कुछ ना कुछ का मतलब ये वैल्यू एक्चुअल में एन ऑफ ए यूनियन ओ आई है, which is clearly visible using the Venn diagram. Any doubt to anyone? No, sir. Now this is a simple one marker logical question. Check this out. Six for the first part. Maximum no. Sir, 9. Sir, 9. Yes. आप चेक करिए, आपको मैक्सिमम और मिनिमम का जो कंसेप्ट सोचना है यूनियन में, n of A is 3, n of B is 6. दिस इज अ कॉमन सेंस कि जब मुझे A यूनियन B को मैक्सिमाइज करना है तो सोच के चलिए, ये मान लो A है और ये B है, से दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 6 एलिमेंट, तभी तो आपके पास n of A यूनियन B वुड बिकम n of A प्लस n of B, ये वाले 3 एलिमेंट और इसके 6 एलिमेंट आ जाएंगे। योर आंसर। एट द सेम टाइम जब मुझे A यूनियन B को करना है मिनिमाइज, अब आपको कम से कम एलिमेंट चाहिए एंड थिंक लॉजिकली, दिस इज ओनली पॉसिबल 6. when all the elements of A are the elements of B, सारे के सारे इसी एलिमेंट में आ गए, Yes, sir. राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम तो 6 तो आएंगे ही आएंगे, सो दैट वुड नॉट बी नाउ 3, वो 6 हो जाएगा। ये सोच के देख लीजिए कि ये वाला डायग्राम क्यों नहीं हम यहां सोच सकते, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, बट व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि मैक्सिमम करना है तो वो बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए, मिनिमम करना है तो ये इसके अंदर आना चाहिए। तो हियर वी आर अप्लाइंग सिंपल लॉजिक। Based on this, you have your NCERT exercise 1.6. स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं यहाँ एटलीस्ट इस एक्सरसाइज में, विच आर फॉर्मूला बेस्ड। फर्स्ट 2 तो देखते ही पता चल रहा है। अटेम्प्ट इन योर होमवर्क। Next 2 again check it out, everything is given to me, कहीं कोई ऐसे डाउट नहीं आएगा, you can easily check that out.
followed by again very simple questions. एक बार आप सिर्फ पढ़कर देख लीजिए कि आइडिया क्लियर हो रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज गिवन और हमें क्या निकालना है. तो आउट ऑफ 4 जो फार्मूला में इन्वॉल्व हुई हैं आपकी वैल्यूज, 3 आर ऑलरेडी गिवन टू मी. I can easily find out the fourth one. और यहाँ I would prefer use the formula directly. Check this out. इसमें कहीं कोई डाउट? ओके, इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, NS only, कुछ ऐसी टर्म्स वाले क्वेश्चन अब मैं वेन डायग्राम से बताता हूं इसे, एंड यू विल रियलाइज के वो प्रेफर क्यों किया जाता है. 7th क्वेश्चन पढ़िए. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. यहाँ ये पहले से 10 बता दिया है. How many like tennis only and so on. तो आप लॉजिकली सोचिए, ये अगर x है, C कितना था क्रिकेट वाले 40, यहाँ कितना आएगा ये वैल्यू. 40 में से ये 10 हट गए, 30 आ जाएगा. और आपको ग्रुप ऑफ कितने पीपल दिया था? 65. तो मिलाकर इन तीनों का ये टोटल पीपल आ गए और ये है 65. दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ x और वो कितनी आ गई? 65 माइनस 40, 25. तो ये वैल्यू 25. अब बस आप क्वेश्चन पढ़कर देखिए. यस अभ्युदय? नो सर, वो गलती से हो गई. अच्छा चलो, नो प्रॉब्लम. सो आप चेक करिए, आपके पास पूछा क्या है, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली. टेनिस ओनली का मतलब आप सोच सकते हैं सिर्फ इस पोर्शन को रेफर कर रहा है, टेनिस ओनली. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियरली 25 हो जाएगा, टेनिस ओनली. वो x हो जाएगा. और सेकंड पार्ट वो लिख दिया, टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट. तो टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट का मतलब एक्चुअल में ये निकालना था, n ऑफ t माइनस c, ये निकालना था. और अगर मैं फॉर्मूला अप्रोच में जाऊं तो n ऑफ a माइनस b क्या होता है? n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. चेक आउट द फॉर्मूला लिस्ट जो मैंने 5-6 फॉर्मूला दिए हैं, बस उसी में टर्म को रीअरेंज कर दिया. आई विल अराइव एट दिस रिजल्ट. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. 12th में हम प्रोबेबिलिटी में सिमिलर रूल यूज करने वाले हैं, तो इससे भी नोट कर लीजिए ध्यान से. दमन, एनी डाउट? सर एक बार दोबारा बता दो टेनिस ओनली वाला. आपके पास जैसे क्वेश्चन में कहा है, जो जो वैल्यूज गिवन थी मैंने वो वेन डायग्राम में किया और सिंप्लीफाई कर दिया. अब जरा लैंग्वेज को पढ़ो, क्या कह रहे हैं. हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट. तो टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, क्रिकेट नहीं हो, तो वो ये एक्सप्रेशन आएगा एक्चुअल में जो आपको निकालना है. n ऑफ t माइनस c आपका अननोन है, ये जो पूछा गया है. एंड देन वी कंसीडर अ सिंपल फार्मूला, n ऑफ a माइनस b एक्चुअली होता है n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. ये फार्मूला तो आपको याद करना है. वेन डायग्राम से आप बिल्कुल इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाई दिस इज ट्रू, बट एट द एंड लर्न इट. तो अब अगर मैं फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सोचूं तो n ऑफ t माइनस c का फॉर्मूला सोचिए क्या बन जाएगा. n ऑफ t माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c. मैच द टर्म्स, a b की जगह t and c आ गया.
What is n of t? n of सॉरी, ये हम निकाल चुके हैं ना, n of t ये पूरा हो जाएगा which is 35, 25 n of t तो 35 होगा पूरा, n of t ये आएगा ना 25 प्लस 10 आ जाएगा, और माइनस कर दो इनका इंटरसेक्शन विच इज 10 ओनली, तो यूर रिक्वायर्ड आंसर, और वो आंसर हम यहाँ लॉजिक से पहले ही निकाल चुके थे। तो चॉइस विल बी यूअर्स, फॉर्मूला में जाओ या वेन डायग्राम को समझ लो। इन केस ऑफ 3 सेट्स जब इन्वॉल्व होंगे, then highly recommended only go for the Venn diagram approach. Reason being, for 3 sets we have typical very lengthy formulas, and for every situation and every part you may require to use some new formula. So there is a list of 3-4 different formulas. Exactly 1 का अलग formula है, exactly 2 हो out of 3 उसके अलग formulas हैं, neither of them, so that will list number of formulas. But अगर आपने Venn diagram की approach को समझ लिया, you do not require to learn even a single formula. सर अगर हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करते हैं तो हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा सॉल्यूशन में? Obviously yes, वो तो कंपल्शन हो जाएगा, वेन डायग्राम दिखाना, इट्स नॉट योर रफ वर्क, तो वो तो फेयर में ही आएगा। ये क्वेश्चन अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे ये पूरा प्रॉपर वेन डायग्राम बनाकर और फिर आपको ये शो करना है। टेक दिस आउट, अब थोड़ा सा रिलेट करिए, इजीली हो जाएंगे ये। A very simple exercise is given in NCERT. In fact, अगर आप क्वेश्चन नंबर्स को ध्यान से देखें तो ये मैंने NCERT मिसलेनियस के ले लिए हैं क्वेश्चन। NCERT ये मिसलेनियस के क्वेश्चन, तो मिसलेनियस में देयर आर 4 वर्ड प्रॉब्लम्स एट द एंड। 13, 14 तो सिंपल है, और 15 और 16 अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग 3 सेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हैं। चेक आउट द क्वेश्चन और वी विल कंसीडर वेन डायग्राम। इफ वी आर गिवन विद 3 सेट्स, जैसे अगर आप पढ़कर देखें इस क्वेश्चन को, इन अ सर्वे ऑफ 6 पीपल it is found 25 read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 newspaper I, 9 read both H and I, 11 both H and T, 8 both T and I, 3 read all the newspapers. तो लास्ट में चीज बताई गई है, इनफैक्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, जो ये कहा गया है इसे मैं स्टार्टिंग में ही यूज करूंगा, तो इसीलिए रीड द लैंग्वेज कंप्लीटली। तो अब आप चेक करिए, आपको एन ऑफ यू कितना बताया गया है, 60 पीपल है, और अब इसमें इन एच न्यूज़पेपर वाले 25 हैं। एक तो ये मैं हटा देता हूं, लेट मी यूज द सेम नोटेशन, मतलब ये क्या दे रहा है, एच वाले 25 हैं, एंड देन 26 है न्यूज़पेपर टी, और फिर 26 है न्यूज़पेपर आई। कैन एनीवन मेक अ गेस, ये एच, टी और आई किन न्यूज़पेपर को बताना चाहते हैं? एनी गेस वर्क? Sir, H for Hindu and T for Times of India and I for Indian Express.
Yes, and H for हिंदुस्तान टाइम्स भी हो सकता है, बट ऑफ कोर्स दिस इज अ नेशनल बुक एनसीईआरटी, तो वो पर्टिकुलर किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, राइट? इसीलिए यहाँ कंप्लीट नेम वो कभी भी नहीं दिया जाता है। एनीवे, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कहा ना, ये 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, ये वाला सेंट्रल वैल्यू हो गई। सबसे पहले फिल। अब जरा फिर यहां शुरू करिए पढ़ना। देखो हम किस किस चीज को यूज लिख चुके हैं, एटलीस्ट ये 26 वाले और ये 26, इन वैल्यूज को मैं यूज कर चुका हूं। अब जरा लॉजिक की बात करते हैं। क्या कहा गया है आपके पास? 9 रीड बोथ एच एंड आई। ये 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच एंड आई बोथ। कैन यू ऑल विजुअलाइज कि इस पोर्शन की बात की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। एच एंड आई में कॉमन ये दिया है आपको, और वो है 9। अब 9 में से 3 तो पहले लिखे जा चुके हैं, तो यहां 6 आ जाएगा। अगेन 11 रीड एच एंड टी। एच में और टी में 11 है, सो ये वैल्यू आपको गिवन है 11। दिस ग्रीन सर्कल व पोर्शन जो आ गया, ये टोटल 11 है। 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा यहां पर? ये वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? 8। दैट वुड बी 8। और लास्ट स्टेटमेंट क्या कही है? 11 रीड, अच्छा ये तो हो गया। 8 रीड टी एंड आई। तो 8 रीड टी एंड आई का मतलब क्या हो गया? टी एंड आई, वो आप चेक कर सकते हैं। ये वाला कॉमन रीजन आ रहा है, दिस कॉमन पोर्शन, और ये बताए गए थे 8। 8 में से 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, कितने बच गए? 5. 5 ओवर हियर। सो वट एवर इंफॉर्मेशन वॉज गिवन, मैंने उसको जॉट डाउन कर लिया इन माई वेन डायग्राम। अब जरा लॉजिक की बात स्टार्ट करते हैं। एंड व्हाट आई विल डू, मैं इस वैल्यू को x, ये जो बचे हुए हैं इनको एक्स वाई जेड कह दिया, राइट? सबसे पहले अब आप फोकस करिए हिंदू h वाले के ऊपर। h का मतलब क्या हो गया? h वाला मतलब कंप्लीट दिस सर्कल। सिर्फ इस सर्कल पे फोकस करिए और सोचिए जरा ध्यान से, इस सर्कल का टोटल सम आपको कितना बताया गया है? कितना है? 25. दैट इज 25, isn't it? ये ऊपर लिखा हुआ था। इसका मतलब ये जो वैल्यूज लिखी गई हैं, क्या क्या है वो? x प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6, ये 25 है। सिमिलरली y वाला बता सकते हो क्या आएगा? y के साथ क्या बनेगा? y प्लस 8 प्लस 3 प्लस 5, ये कितना है? 26। 26. और नीचे z वाली इक्वेशन बता दो। z प्लस 5 6 plus प्लस 3 3 प्लस plus 5, किसी भी ऑर्डर में ले लो, हार्डली मैटर। ये 26, और इसका मतलब कितना आ गया x? देखना जरा। सर 8। 8 आ रहा है, 9 आ रहा है? हाँ 8 आ रहा है, यस। नेक्स्ट y कितना आ गया? सर 10। 10. एंड z आ गया 12. 12 आ गया। मतलब मान लो मैंने ये वैल्यूज लिख दी यहाँ, ये 8 आया, y इज 10 एंड z इज 12। व्हाट हैपेंस? ऑल द वैल्यूज जो हैं वो फिल हो चुकी हैं मेरी सर्कल में। अब आप जरा क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो, फर्स्ट पार्ट।
How many people read at least one of the newspaper? At least one of the newspaper का मतलब आपसे ये पूछा गया है, कोई ना कोई तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और लॉजिकली देखिए तो वो क्या होगा, एनी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, isn't it the sum of all the numerical values जो लिखी गई हैं, चाहे वो इस ये हो, you add all these numerical values। क्या मतलब, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं h वाले पोर्शन से, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज को देखना तो 8 प्लस 6 प्लस 3, फिर जो बच गई हैं, फिर 10 बचा, फिर 5 बचा और नीचे से 12, 52। ये आप ऐड करके देख लीजिए, आंसर टू फर्स्ट पार्ट। The number of people who read exactly one newspaper। exactly one का मतलब क्या पूछा है आपसे, x प्लस y प्लस z। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले ये वाले लोग होंगे ना, जो मैं अब हाईलाइट दिखा रहा हूं, जो सिंगल यहां रहे हैं। और ये कितना आ गया, 8 प्लस 10 प्लस 12, 30। Right. Let me add 2 more parts to this question. How many read no newspaper? What is the answer? 8. आप चेक करिए, there was a sample of 60 person। उनमें से कुछ ना कुछ पढ़ने वाले मैं निकाल चुका हूं 52। आंसर फोर्थ पार्ट। चलो, हाउ मेनी रीड exactly 2 newspapers? That will be actually 2 में आ रहा हो तो 8, 6 and 5, which is your required answer in this case. So once the idea is clear, और वो भी कैसे, जब मैंने वेन डायग्राम की सारी एंट्रीज को प्रॉपर फिल कर लिया है, you can easily go on answering all the parts. So Mark, I hope this idea is clear, so that this is the question for your homework। ये तो NCERT का ही है, easily आप कर लेंगे, followed by this question। ये मैं अलग से स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। This will be again in your homework। So try out the following 2-3 questions जो मैं आपको भेजने वाला हूं as a homework। Any doubt to anyone? सर नो सर। Yes? सर एक क्वेश्चन था सर, अभी पूछ लूं? हाँ बताओ।